वो छोटे दादा, टीटू दादा बिल्कुल हम लोग की हेल्प करेंगे। पिताजी जी आप आएँ तो बहुत ही अच्छा होगा। नहीं, तो ताऊ जी, ओवर टू यू। yeah, sure. For me, lots of things, because before I get too emotional, I want to say a few things about Prakash Bhai in particular. Though Bade Bhai and Kamal Bhai had a lot of contribution in my life, uh, but Prakash Bhai had a very different contribution. When I used to read in the hall, गर्मी के टाइम में, छुट्टियों के टाइम में हॉल में लेट के कुछ पढ़ रहे हैं, तो either there was some stupid magazines or something, Shushma or whatever. So he will take it up from me and he'll say, कुछ पेलिब्रेशन वगैरह पढ़ा करो, क्या है ये तुम्हारा dirty thing. So that was one experience, and I thought I learned from him. And second thing was, whenever I used to, because he was very fussy about his food, so he will not have kaddu, he will not have bangan, while I have everything. So Binod ji will say, फिर इनके लिए, प्रकाश के लिए वो लेके आओ, जरा दही लेके आओ. And I will always be happy to get dahi for him for one reason, and he will pick that up. वो दोनों में लेके आते थे, and by the time it gets to the table, the malai had gone. So he will know who has eaten this. बोले किशन तुम लेके आए थे क्या? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लेके आया, तो दही तो शशि लेके आया, कोई भी मतलब whatever, I'll make excuse for it, but he always knew it. So a few things, and then we grew up. There was always a very good connection. Love to, we had all brothers, sisters, had love for each other. Definitely, there was no doubt about it. And whatever brothers, sisters have, but still, that bonding was there. But the best thing I remember, before the journey, we went to Annapurna Mandir. So I have got a great connection with that, because that was my last memory about him. We had gone to Annapurna Mandir, and that I have never forgotten till now. And I write sometime in my morning, journaling करता हूँ, मैं रात को भी journaling करता हूँ, but morning में अपनी कुछ लिखता हूँ, हर साल से बहुत सालों से लिख रहा हूँ. So that is something I always do. And I think there is a lot of things happening in my mind at the moment I could say about him. But that was something, he had a big influence on me for various other things, but that was something I always will treasure. I know, Tauji. I know the early departure was, but then again, God is great. Maybe he had better things to call for him rather than here, because he had a lot of very intelligent, extremely, extremely intelligent, in my opinion, beautiful handwriting. I don't think that any of the brother sister had that. And he spoke his mind. He didn't care whether it's Bhiyaji or something. And we always had but that's the way he was. And I think when I look back, I think it was very great. And unfortunately, academically also he did well, but there was issues in the college and other thing because of the whatever reasons. But I must say that he stood what he was, and he did everything what he could do for family. That's what I think about him. So God bless his soul. I'm sure he's in a new new costume somewhere, beautifully placed, and I wish for that. So that's my little bit of anecdotes. I didn't prepare anything. Whatever came in my mind, I was not even going to say anything with my throat. But and I'm glad that I didn't cry. Oh, lovely. और ताऊ जी, I know, I mean, आपको दिक्कत भी हो रही है बोलने में, बट मैं एक छोटे से 2-3 सवाल पूछूंगा ताऊ जी. बिल्कुल. प्रकाश ताऊ जी को अच्छा क्या लगता था when he was young, before marriage टाइम की मैं बात करना चाहूँ, पढ़ाई में, खेल में? He used to love poetry. I mean, ghazals, and that is Shishan cricket. Cricket was in our blood, all of us. I mean, he also played, and that's again another thing. He always used to play. हम लोग तो आंगन में खेलते हैं, जैसे अपने तो वो कहते हैं ना कि बॉम्बे में भी सब लोग ऐसे ही ट्रेन हुए, वो खेल खेल के, तो हम लोग भी खेला करते थे. कभी किसी के बॉल कहीं जा रही है, कभी कोई उठाने जा रहा है. And he used to play as well, actually, to be honest. I think he played college, I think. Then again, I remember that. And what was the other thing you asked? What was the second question?
Yeah, so that was one. And और बाकी आपको कोई इंसिडेंट बहुत जो आप बड़े इंस्पायर हुए हो, ऐसा कुछ अगर याद हो? वो इंस्पायरिंग तो बता दिया ना बेटा कि वो ऐसे कुछ उल्टी सीधी चीजें पढ़ रहा था, तो ही एनकरेज मी टू रीड समथिंग बेटर देन दोस रबिश व्हिच आई वाज रीडिंग. आई मीन इट वाज समर टाइम, आई थिंक समर ब्रेक, एंड few things. Oh, yeah. एक बार मैंने उनकी शायद कोई शर्ट वहां से उठा ली थी, क्योंकि we landed, me and Shashi landed up in his room later. I mean, when he went away from that room, that was room became of mine and Shashi, both shared. एक में नेहरू जी की फोटो लगी थी, एक में हम लोगों ने सुभाष बोस की लगाई थी, अपने लिख लिख के कुछ लिखा हुआ था. तो something he said about, and I think me and Shashi picked up something from his pocket, and he wasn't sleeping, so he said to कि इन्होंने कहा, और हम लोग ऊपर चले गए. वैसे वैसे मतलब ऐसे बच्चों को नहीं बोलना, hope they don't understand, but we did what we did. So that was the episode which I learned from, and since then I never touched anybody's pocket or anybody's purse, including my wife's purse. I don't touch it. But it was such a thrashing, or like your dad was a masterpiece in drama. वो मतलब मुझे थप्पड़ पड़ा है भैया जी का, बड़ा वाला, बढ़िया वाला अभी तक याद है. I had all me I wouldn't say, but and he went away. He started crying without having a slap. And so उस बार की जो so what I'm saying is कि प्रकाश भैया ने पढ़े उससे ही कहा था, but we got the little thing because हम उस पैसे मतलब शायद एक रुपया या 2 रुपए चुराए होंगे, तो वो we went to that place and bought something. This is not something to share, not to be credit, but at least we learned a lesson from that, because you saw that, so it was nice. It was a great experience to have the slap from dad. And आपके हमारे भाई साहब, शशि भाई साहब को तो पड़ी नहीं, वो तो बिना उसके निकल गए नाटक के, चिल्लाते हुए, हंसते, मतलब बाद में बेटा हंस रहे थे, पिटाई हमारी हुई अच्छी खासी. So it was good. Life was good. So, and very grateful. थैंक यू ताऊ जी. ताई जी चरण स्पर्श. टीटू दा अनम्यूट कर दीजिए प्लीज. टीटू दा म्यूट पे हैं. थैंक यू. ताई जी तबीयत कैसी है? मंजूर चरण स्पर्श. प्रसन्न रहे, खूब लंबी लंबी बातें करें, स्वस्थ रहे. अच्छा, आपके टाइम में तो था ही नहीं ये सब ना, तो वो दही वही का इंसिडेंस तो आपके टाइम में था ही नहीं. तो मंजू भाभी, आप तो बहुत बाद में ज्वाइन किया आपने. अच्छा. हाँ, बहुत बाद में आए थे. हाँ, सब देखा है आपको, शशि भैया को. अरे अर्चना चाची भी है. राज भैया को भी. आप सुनाइए अपना. मंजू भाभी आ गई तो मंजू भाभी सुनाएंगे. इनको बहुत किसी के मैं बाहर निकल आया फिर. चलिए. तो ताई जी सब बच्चों ने भी ज्वाइन किया है, और हम लोग ताऊ जी के बारे में ही जानना चाह रहे थे कि ताऊ जी की पढ़ाई के बारे में, ताऊ जी के क्या शौक थे उनके बारे में, वो सब जानने की. अगर आपको कुछ याद हो ताई जी प्लीज बताइए. ताई जी को तो बहुत कुछ याद है. प्लीज ताई जी बताइए. अपने जो मलारगंज का घर था ना जी, उसको कैसे प्रोग्रेसिव बनाया जा सकता है, उन्हीं का थॉट था सबसे ज्यादा. कैसे घर में वो करा जा सकता है, बच्चों को आगे बढ़ाया जा सकता है. नीटू, पिंटू, टीटू को नागदा बुला के स्विमिंग सिखाना, खेल खेलना, ये सब उन्हीं ने शुरू करवाया. और घर में वो गैस का सिलेंडर लाना, पहला उन्हीं का गैस लाना, कुकर लाना. हाँ, गैस, कुकर, ये सब चीजें. रेफ्रिजरेटर because he was with the वॉशिंग मशीन, फ्रिज. एक तरह से घर में आविष्कार ही उनने इन चीजों का किया. सुनाई दे रहा है ना गौरव? बिल्कुल बिल्कुल ताई जी, बिल्कुल सुनाई दे रहा है. We are all listening. आपको हम लोग सुन रहे हैं आपको बड़े ध्यान से. हाँ, सही बात है. अपने घर में कुकर आया सबसे पहले. मंजू भाभी आप ही इस्तेमाल कर सकती हैं, कर लीजिए, कोई डर की बात नहीं है. गैस का चूल्हा आया, फिर वॉशिंग मशीन आई, फिर फ्रिज आया.
एक एक चीजें उनने घर में नई लाके दी। ये पिक्चर जो लगाई है, आई थिंक दिस इज ऑफ द मैरिज, इजंट इट? हाँ ताऊ जी, ये कुछ मुझे दीदी से पहले मिली हुई थी, तो मैंने सोचा कि वाओ वाओ, दिस इज, आई रिमेम्बर दिस, यस, ओके, सम सीरीज ऑफ इट। आई थिंक। और ताई जी, और ताई जी कोई किस्सा आपको याद हो ताऊ जी के साथ? ताऊ जी के साथ तुमको एक कहोगे तो 10 याद आएंगे। बिल्कुल ताई जी, 10 सुनाइए। खाने का सुनाइए, खाना क्या पसंद करते थे? हाँ, खाना प्लीज। ताऊ जी, उन्हें खाना जो ना पसंद था वो था अरहर की दाल के संग कद्दू का बनना। That's what I was जिंदगी telling में about. एक बारी उनने थाली उठा के फेंकी थी, अरहर की दाल के संग कद्दू बन गया था इसमें। I remember that. I remember. तो उस बस, टाइम मेरे और को सब चीजों को, नई चीजों की बहुत तारीफ करते थे, कुछ बना के खिलाओ, वाह वाह वाह। और एक ही चीज से चिढ़ थी, अरहर के दाल और कद्दू का कॉम्बिनेशन। वो बैंगन भी शायद नहीं, बैंगन नहीं, कद्दू का कॉम्बिनेशन। अरहर की दाल और कद्दू का नहीं पसंद था। पूरी के संग कद्दू बना लो, सब कर लो, लेकिन अरहर की दाल के संग कद्दू नहीं। कुछ मुझे याद मुंह में स्वाद इतना था कि पहली बार वॉशिंग मशीन में लस्सी बनी थी प्रकाश अंकल के बोलने से। नहीं, वो तो मंजू भाभी ने बनाई थी, बेवकूफी करी थी। इनॉग्रेशन हुआ था लस्सी बना के। मंजू भाभी, ये शिक्षक था, मैं पता ही नहीं था। अरे प्रकाश ये कह रहे, पप्पू भैया सबको मालूम है। क्या वॉशिंग मशीन आई थी, गोल सी थी बिल्कुल। वाह। और उसकी मशीन चलती थी, आपने उसके लस्सी बना के उसका इनॉग्रेशन हुआ था उस मशीन में। वाह वाह वाह, ये बहुत बढ़िया झाग वाली लस्सी बनी, सब लोगों ने खूब 2-2 3-3 गिलास पी। ये शिक्षक हमने तो कभी डाल के साफ करी गई थी। हे प्रभु, हमें नहीं पता था। हाँ, लेकिन ये हमें भी नहीं मालूम था पहली। ये किस्सा मैंने नहीं सुना। उसमें जो केमिकल थे, जिसने पी सबके बाल गए, मेरे भी। नहीं, उसमें केमिकल का सवाल ही नहीं। अब उसको बात को बताने वाला अगर बता सकती हैं तो कुसुम दीदी बस, और कोई नहीं। नहीं तो बाकी अपने घर में इन लोगों को सबको मालूम थी, शशि भैया वगैरह सबको मालूम थे। सफेद अब वॉशिंग मशीन आई थी, छोटी सी गोल गोल, वो शायद रखी भी नहीं बहुत दिनों तक। वो याद है, वॉशिंग मशीन याद है, नीले रंग की थी। नहीं, व्हाइट, और चबूतरे पे बहुत दिनों तक रखी भी रही थी बाथरूम के आगे। हाँ। चलिए, और नाउ somebody else come on. बिल्कुल। पर ताई जी, मुझे कुछ शादी के टाइम का किस्सा बताइए, जो ये फोटो है, अगर आपको ये कुछ याद हो, शादी के टाइम का अगर कुछ याद हो। शादी आदि का तो हमें बस सभी याद होगा, याद करे सब याद होगा। मधु आंटी लग रही है। टीटू, तो आपको मिलते हैं 10 में से 10 पॉइंट्स। एक्चुअली प्रकाश अंकल was very happy with this marriage. प्रकाश अंकल के बारे में बहुत कम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी चले गए वो। नहीं, ऐसा नहीं है कि whatever time he had you know, we can talk about it. There's lot to talk about. It's not that. अब असल में जो बोलने वाले हैं पप्पू भैया, हम और आप। कुसुम दीदी बोल नहीं पाएंगी ज्यादा, मैं भी हूँ, जिन्हें मालूम है। सब लोगों को याद है बोलने वाले वगैरह बोलेंगी, शोभित बोल सकते हैं। everybody remembers, और मैं उनके शोभित बोल सकता है। मैं तो मेरे लिए टीटू तो बहुत रहा, टीटू ज्यादा मेरे लिए तो फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन नागदा। हर गर्मी की छुट्टी और रादर हर छुट्टी में, कोई भी छुट्टी के बहाने में नागदा में जाया करता था। सॉरी, प्रकाश अंकल ने ही शुरुआत से बहुत ज्यादा एंकरेजमेंट दिया। पहले हर चीज लर्न करने के लिए उनकी जो एक इच्छा थी कि सामने बच्चा चीजें सीखे, वो उनका एटीट्यूड था, वो उनका ब्लेसिंग था, वो उनकी एक इच्छा थी कि मेरा भतीजा आया है तो कुछ अच्छा करे। तो उन्होंने मुझे स्विमिंग से इंट्रोड्यूस कराया। उन्होंने मेरा क्रिकेट में क्रिकेट तो पहले खेलता था, पर क्रिकेट की जो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है, कोचिंग वगैरह,
वो उन्होंने लगवाई। और मेरे लिए सबसे अच्छा जो रहा, मैं जब 12th पास करके थोड़ा सा क्लूलेस था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि आगे क्या करना है। एक चीज क्लियर थी, इंजीनियरिंग नहीं करना है क्योंकि नीचे इंजीनियर था, इंजीनियरिंग इसलिए नहीं करनी थी। तो फिर प्रकाश अंकल ने उनको मालूम था कि मैं एनडीए में इंटरेस्टेड हूँ, तो उन्होंने ही पापा को फोन किया कि टीटू को इंदौर में टाइम वेस्ट करने के बजाय उसको आप दिल्ली भेजिए। और उन्होंने ही मुझे कोचिंग क्लास में डाला, विच टुडे आल्सो आई फील सो थैंकफुल एंड यूजफुल कि उनकी एक बहुत अच्छी सोच थी। और मेरे ख्याल से जब हम प्रकाश अंकल की बात कर रहे हैं, इसमें मधु आंटी का नाम जोड़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैं जब नागदा, मेरे जितने भी मैंने लोग देखे हैं, मेरी ताई जी, मेरी चाची वगैरह सब, दो मधु आंटी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं बताऊं कि मधु आंटी तब टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ती थी और हर पन्ना पढ़ती थी और उनका जीके बहुत सॉलिड था। तो मधु आंटी ने भी काफी ज्यादा मोटिवेट किया, बहुत अच्छे से रखा। और प्रकाश अंकल को इस चीज में बहुत हेल्प करी, क्योंकि अगर घर की लेडी अगर सपोर्ट नहीं करे तो कोई भी चीज करना बहुत मुश्किल है। Agree, 100%. प्रकाश अंकल के संग एक और चीज थी जो मुझे आज बहुत अच्छी लगती है कि डेफिनेटली मैं अभी भी नागदा की ही बात कर रहा हूँ कि सुबह ऑफिस जाते थे, उनकी ऐसी रिलैक्स लाइफ आई विश कि मेरे पास आज हो। सुबह फैक्ट्री गए, फैक्ट्री भी 10 मिनट की, रास्ते पे दोपहर में घर पे आए, शर्ट खोली, खाना खाया, बनियान पहन के 1 घंटे की नींद निकाली और वापस। और जब प्रकाश अंकल सोते थे तब सब जगते थे। तो प्रकाश अंकल अपना 1 घंटे सोए, वापस गए, शाम को वापस आए। पर इस बीच में उनका ये था कि कोई भी चीज कम्युनिकेशन करना हो, घर पे समोसा जलेबी खाने पीने के बहुत शौकीन थे। ये यहाँ चले जाओ, कभी चिकित्सा चले जाओ, गेस्ट हाउस चले जाओ, कभी कुछ खाने पीने के लिए आओ। संडे तो पक्का था ही, वीकडेज में भी जब इच्छा होती थी एक फटाफट कम्युनिकेशन आ रहा खास उनकी एवर फ्रेश की दुकान थी। I know. बिना तले समोसे, बिना फ्रेश से, बिना तले समोसे। बिना तले समोसे। Titu, इनकी can I just say something? देखिए प्याज के हैं, क्या हुआ, बिना तले हैं। Titu, what life you described about Nagda, but it wasn't the same in Delhi because I had gone to ITDC. His work was tremendous. So whatever enjoyment he had in Nagda, it wasn't in Delhi for him. ITDC में बहुत busy. He was very busy. So when bus से जाते थे शाम को, I'm sure he didn't have time. I think Nandita will remember, of course, because I had only gone for when I was visiting, so few days when I stayed with him in Delhi. So in the morning with Jana, ITDC, I went to the Ashoka, was it? Ashoka? Ashoka. Very busy one. So जो नागदा की जो आराम था वो पूरा निकल गया वहां पर। ये तो कहते हैं ताऊ जी एमपी अजब है, एमपी गजब है। अच्छा, ये फोटो छोटी चीजें हैं, अब तो बिल्कुल उसको कोई मानेगा नहीं। मैगी खाना उनने सबसे पहले शुरू किया। Oh, really? I didn't know that. सच में वो उनने हमसे कहा, मंजू भाभी इतनी अच्छी चीज है मैगी, जब मैं अकेला रहता हूँ तो मैं मैगी बना के खा लेता हूँ। पोहे याद है मुझे, उनके पोहे पिज्जा उनने अशोका से लाके आते थे, देखिए मैं लाया हूँ पिज्जा बेस, इसको बनाइए, ऐसे बनता है। ये चीजें छोटी छोटी हैं, लेकिन उनने आगे घर में मतलब घर का सोचते रहते थे। मधु भाभी also used to cook very differently and nicely. बहुत सारी चीजें बनाती थी, मुझे याद है अच्छी तरह। And this picture which I'm remembering is of आंगन का है ये पिक्चर। हम लोग आए थे रात को, माँ और पिताजी भैया जी खड़े हैं, and I think Shashi is there now, isn't it? Very nice picture. तुलसी के वहाँ का है ये, शायद घर पे मधु भाभी शादी के बाद का है। They were very happy at the time, I must say, this occasion.
नहीं, वो प्रकाश भैया की शादी का तो नहीं है ये कहीं वहीं का शादी है। से ये ताई जी आप खड़ी हैं साइड में बड़ी ताई जी के पास में, बिल्कुल। और ताई जी शायद हाँ, बाबा के बिल्कुल। पास। आई थिंक रानी या कुकी है या शशिकला। ये रही है। आई एम श्योर इट्स अ मैरिज वन, नो? जी जी Yes, it is. I think I remember माँ का और भैया जी कहीं से आ रहे थे, प्रकाश जी बैठे हुए वहां पर। ये जनेऊ का है शायद। Yes, this is of जनेऊ, I think. Yes, जनेऊ का है। जनेऊ का होगा तो बहू कैसे बैठी है? ओ, तो फिर तो शादी का ही है फिर तो। आप I've just seen it actually. It is, मतलब ये बारात से आए हैं हम लोग वापस इंदौर में, तब का है ये। और माँ बहुत खुश थी पीछे मुझे देखने माँ, और ये बिल्कुल वही। मैंने कहा आपसे मंजू, मैंने अभी देखा नहीं पूरी, ये नीचे जब पूरा किया तब देखा प्रकाश भैया का और मधु भाभी का। हाँ, दिस इज आफ्टर मैरिज मंजू भाभी, क्या आपको याद नहीं? और मैं ये फोटो सबके साथ शेयर भी कर दूंगा। नहीं, दिस इज अ वेरी गुड पिक्चर, वेरी वेल। आई रिमेम्बर इट वेरी करेक्टली। आई थिंक शशि एंड कुकी इज स्टैंडिंग एंड मंजू भाभी खड़ी हैं, बड़ी भाभी खड़ी हैं, और कोई कौन खड़ा है पता नहीं। एनीवे, रानी कुकी है कोई? नहीं, कुकी है, कुकी तो दिख रही है, बट वो दूसरी रानी नहीं है, कोई और है। कोई और टीटू दा कोई किस्सा कोई बताएं आप, कोई किस्सा ताऊ जी के साथ आपको याद हो, बहुत ही फॉन्ड मेमोरी में, कि ये किस्सा बहुत बढ़िया है बताने लायक। वैसे मैं भी बहुत छोटा ही था, तो किस्से जैसी चीज तो कुछ नहीं है, पर मेरा बैकग्राउंड सबको मालूम ही है पिटने विटने का। पर मेरे ख्याल से प्रकाश अंकल वाज अ रियल एक्सेप्शन कि कभी डांटा भी नहीं। इनफैक्ट उन्होंने मेरी पूरी मस्ती में उन्होंने मेरा सहयोग दिया, कभी भी डांटा नहीं, कभी भी किसी भी चीज के लिए मुझे टोका नहीं कि ये मत करो। तो एक उनकी आंखें बहुत थी, अगर उनको चीज पसंद नहीं आ रही है देख के आप इशारा समझ जाइए, नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत ही है। तो मुझे वैसे इशारे बहुत अच्छे लगते थे, पर मुझे अलग इशारे भी बहुत मिलते थे। तो मेरे ख्याल से अपार्ट फ्रॉम खेलने कूदने का, उसके अलावा उनका जो एजुकेशन के प्रति जो उनका दृष्टिकोण था, बहुत ही, वो भी बहुत अच्छा था, बहुत ही प्रोग्रेसिव था। और जब उन्होंने नागदा से जब दिल्ली गए, मेरे ख्याल से शोभित और चिंकू और चिक्की के लिए बहुत जरूरी था। और मेरे लिए भी उन्होंने, जैसे मैंने एनडीए और सीडीएस का बताया था, उन्होंने ही ये चीज सोच रखी कि एक फॉर्मल कोचिंग का, फॉर्मल कोचिंग कितनी जरूरी है करियर प्रोग्रेशन के लिए। ये भी एक सोच बहुत अच्छी थी, बहुत सकारात्मक थी। और मेरे ख्याल से एक जो एक वाइड दृष्टिकोण होता है, उसके लिए एक बहुत जरूरी चीज थी वो। थैंक यू दादा। और अभी अश्विन नैना, ये फोटो भी बड़ी यादगार है। आई एम श्योर ताऊ जी इसके बारे में ज्यादा बता पाएंगे। बहुत बढ़िया। दिस इज वन, ये हमारे रिसेप्शन की है। किसके? हमारे रिसेप्शन की। आपके रिसेप्शन की तो मधु भाभी कैसे आ गई उसमें? आपने पूरा देखी नहीं पिक्चर? दिवाली की। Thank you मंजू भाभी। साड़ी पहनी थी रिसेप्शन में। I think you did the same sixer as I did, because I didn't see that, but I was sure about that picture of the आंगन की घरुए के सामने प्रकाश भैया की शादी के टाइम की, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है। माँ बहुत खुश थी उस वक्त। मुझे वो दिन कभी नहीं भूलता। I never forget that day. And this picture is in the hall. Look at Prakash Bhaiya, Cookie, very nice picture. And Madhu Bhabhi, Shashi, मंजू भाभी बड़ी खुश हैं, कमल भैया खुश हैं, बड़ी भाभी खुश हैं, पीयूष तो बहुत खुश है, और बड़ा प्यार भी मिल रहा है उनको भैया जी से। He is very happy. Bless him. और नैना अश्विन अभी जो बीच में है वो काकी, और डोंट फॉरगेट काकी एंड ताऊ और बड़े भैया। एंड यू गाइस शुड नो, काकी का नाम अशरफी देवी था, जो कि हमारे घर में काफी लोगों को नहीं पता था और बाद में पता चला। हाँ, मुझे आई थिंक यू गाइस शुड रिमेंबर। हमें तो काकी का नाम मालूम है, फूल कुंवर था। ये अशरफी बहुत बाद में उनका हो गया,
पहले अच्छा। वो अपने मुंह से फूल कुंवर कहती थी, ओह, फूल thank कुंवर you, ही thank था ना? बाद में उन्हें याद है पप्पू भैया? बिल्कुल याद है मुझे, फूल कुंवर ही था। हाँ, I वो told कहती you, थी हमारा नाम तो फूल कुंवर है बिल्कुल। और पता तुम नहीं लोग ऐसा। फूल जैसी बनती हो। और बाद में मालूम पड़ा कि अशरफी नाम था। I have lot of memories for Kaki. हाँ, That's it. तो हम Anyway. बचपन में यही बता रहे थे कि please, this is Kaki is my great grandmother, my Yeah. grandfather, their grandfather, so and so many grandparents. इन लोग ताई जी और कुकी बुआ को तो पहचाना है, और बाकी अम्मा पापा No, but Shashi, अच्छा, Shashi recognized Manju Bhabhi, Piyush. I think anybody else in this which Tabuji Taiji ji, ठीक है? पीयूष चाचा तो बहुत, दोनों के बचपन में पीयूष चाचा तो हम लोग बम्बई में थे, तो दोनों की पैदाइश हाँ, के टाइम अच्छा अच्छा, पीयूष चाचा ये देनो। दोनों का प्रणाम। हेलो खुशरो आरव, खुशरो हेलो बच्चे। आरव, वेलकम बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून। या प्ले डेट हो गई? You had your play date? Arav, how is your little brother? Good. He's good. भाई आरव भी बड़ा टैलेंटेड है, इन्हें गीता शुरू कर दिए पढ़ना। मतलब मुझे अभी तक मुझे श्लोक याद नहीं, इन्हें याद है। और ऑल्सो रामायण क्या क्या बताया तुमने गौरव? हाँ वो ताऊजी है, बट गीता में अभी फुल्ली फोकस। अच्छा, गीता, वेरी गुड वेरी गुड। और बिफोर हम दीदी के पास आए, अभी एंड अश्विन, वो श्रीनिवास जी की भी फोटो है। दैट्स हाँ, द बैकग्राउंड इज, ये जो बैकग्राउंड है ये ही इज द फादर। क्या हो गया यार? इनका नाम क्या है? श्रीनिवास। वो बाबा का नाम है, और इनका नाम क्या है? श्रीनिवास। दीदी, ओवर टू यू दीदी। कुछ मेमोरीज बताएं ताऊ जी के बारे में, क्या लर्निंग्स, कैसा रहा? अरे गौरव, हम क्या क्या बता सकते हैं। अर्चना चाची भी थी। अर्चना चाची चल, अगर अच्छा सुन रही है वो? एक मिनट, अच्छा बोलो भाई। कैमरे पे आइए, कैमरे पे। चलो भैया भी एक बहुत अच्छी खबर तुम लोग को बताएं। सुदीक्षा फुटबॉल मैच खेलने गई हैं, जीत गई। अरे प्राइज लेके आ रही हैं, कंग्रेचुलेशन। बस आने ही वाली है। I'm so proud. I'm so proud that these youngsters, particularly girls, are playing football. Really happy because Eva also started playing football now in the school, so it's good, very good. Sorry, I'm going to sign out from this Oh, discussion yeah. a bit, but so good to see everyone. Okay, Anishi, before you speak off, say something. तुम बोल के जाओ। हाँ क्या Anishi, please. भैया कुछ कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अरे कुछ बोल के जाओ बेटा, फिर सो जाना जाके। नहीं, मुझे ऑनेस्टली मतलब ताऊजी के टाइम पे तो मैं काफी छोटी थी, बट मैं आई हैव सम वंडरफुल मेमोरीज विद ताईजी। और मुझे तो आई मीन दीदी भैया, आई थिंक एवरीबॉडी नोज, मुझे तो आई हैड सम वेरी गुड टाइम विद ताईजी एंड ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इन बॉम्बे। तो अच्छा, बट हाँ, ताऊजी का शायद तुम्हें it's very difficult to say because ताईजी के साथ पे बहुत अलग अलग me and ताईजी often used to talk about ये music shows जो आते थे, and she would just dislike some of their singing, choice of songs and the way they would do things, but नहीं, I think it's just good कि मैं भी आज काफी सारी stories सुन पा रही हूँ। But हाँ, जो भी याद है, I remember through Papa telling me some things and how Tauji's taught. Papa had a lot of it actually. Papa हाँ, पापा ने ही काफी कुछ बताया है, तो उन्हीं के थ्रू पता है कि ताऊजी ने काफी कुछ करेक्ट कि कैसे काफी बार पढ़ना या reading books, recommendations, right, just his insights on various matters. तो that's what I remember. बाकी मैंने ताईजी से भी काफी स्टोरी सुनी हुई है, माधु ताईजी से। अच्छा, थैंक तो यू बस बेटा। वैसे ही छोटी यादें हैं, बट मुझे ऐसे I'm actually learning a lot आज सुन के। Manushi, thank you बेटा for coming and in the middle of night time, and this is really great. So thank you. नहीं ठीक है, I think it's important. Very proud of you, बेटा, very proud of you. शाबाश अनुषी, शाबाश।
For sure. चाची बाय आइए। बाय बाय एवरीवन, Stay नाइस टू present, सी यू stay गाइस, बाय present. बाय दीदी, बाय भैया, बाय बाय। चाची राम राम। बाय बाय बाय। चाची ताऊ जी के बारे में कुछ बताएं आप प्लीज। अरे मैं क्या, बस मेरे को तो बस इतना ध्यान है, सब पर्दा करते थे, बस भाई साहब पर्दा नहीं करते थे। वो कहते थे तुम यहीं बैठो, बात करो, और जो तुम्हें चाहिए वो बोलो। सबसे पहले शायद उन्होंने ही मुझसे ये कहा है कि वो मतलब, बाकी तो कोई इधर आया है तो हम उधर चले जाते थे, वो उधर बैठा है तो हम उधर चले जाते थे। कभी हम सामने नहीं गए किसी जेठ के सामने। बस भाई साहब और डॉक्टर भाई साहब, दो ही लोग ऐसे थे जो कि पर्दा पसंद नहीं करते थे, वो जरूर पास में बिठाते थे। और तो वैसे भाई साहब मतलब काफी वो थे, साफ बोलने वाले। कभी ऐसा नहीं बोला कि तुमने ये गलत किया है, जो उनके मन में था वही बोलते थे, सबसे क्लियर बोलते थे। ये तो बहुत कहते थे भाई साहब जैसा कोई नहीं है। मैंने उन्हीं से काफी पढ़ना सीखा। मुझे तो वैसे ज्यादा मालूम नहीं, मैंने कभी कम बात ही करी है उनसे, पर दो एक चीजें। बहुत सही बोला है। What you spoke is absolutely 100%. I will agree 100% on it. He was a time breaker. नहीं, बिल्कुल सही बोला अर्चना। I'm very glad you spoke that, what you said just now. आपको अच्छा लगा आप? बेटा नहीं, I यही- remember, नहीं, I can imagine that actually, because I know I may not have been there, but मुझे अच्छी तरह याद है बेटा। ठीक है, नहीं बिल्कुल सही कहा तुमने। It took lot, because we were very conservative, very conservative actually. I think when look back, but ठीक है उस टाइम के लिए शायद ठीक होगा, but for him it was difficult because he was the only one who fought all those traditions so openly. Very true. That's true. नहीं वही हमेशा मतलब कहते थे यहीं बैठो। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल I can understand. कि बड़े भाई सब कमरे में जा नहीं पाते थे। हाँ बिल्कुल। और कमल जी भी moderately उसमें रखते थे actually. He was neither open nor close, but Prakash Vibro spoke all those trends actually, which takes a lot looking back. लेकिन ये बात सबसे करते थे, इनके सामने कोई घूंघट मार के नहीं, कभी नहीं ये नहीं था। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो प्रकाश भैया का स्टेट में, मतलब what he used to break all those traditional things which probably were not desired. So it takes a lot of guts. उस टाइम तो सबको बुरा ही लगता होगा, कई लोगों को बुरा लगता होगा, I'm sure, but it नहीं, takes जैसे a lot. गीता भाभी का भी था कि वो भी बोलती थी कि मतलब उनको भी पर्दा पसंद। she's too हाँ, fond of him तो वो भी actually. हमेशा कहती थी नहीं तुम मत करो, तुम सूट पहनो, तुम ये करो। तो कुछ लोग हैं। She had a lot of regards for Prakash Bhaiya, 100% probably. बहुत सही कहा तुमने। हाँ, आंटी ने अब तक बात मानी है प्रकाश अंकल की। भी सलवार सूट पहन के आई है। नहीं, हमने जेठानियों की बात कम मानी, हमने जेठों की बात ज्यादा मानी है। हमें वही अच्छे लगे। नहीं, true. बहुत सही बात। Very good. I'm very glad Archana you spoke so well. Come on, very good. Bless you. सबसे आगे वाले विचारों के थे वो, आगे का सोचता थे। That's what I'm saying ना, thinking ahead, और also जो सभी ने बुलाया, everybody's what he spoke he could care less कि किससे क्या, ठीक है जो है बुरा मान गया जाओ। I mean that takes a lot. But that's the way it is. So yeah, and then Tito but da he didn't get what he deserved. That's what I always have one regret in my mind. One regret. He didn't get what he deserved. But I felt that time as well. He's getting it through all of us. Just the fact that we are here today is his and Nama's
lifelong learning. हाँ नहीं वो ठीक है बेटा, बहुत सही कह रहे हो, you're right, we are very तो ये grateful also. टीटू भाभी की वेडिंग से सबसे अच्छा ये भी था, इतनी अच्छी सारी फोटोग्राफ्स हैं अरे गैदरिंग, that was just before Pasi, we are all dressed up, such good memories of that wedding. देखो ना, I am so happy actually. Yeah. Beautiful. यार ये बहुत अच्छा कलेक्शन है, इसमें तो अच्छा सचिन है यहाँ पर एंड बड़े भैया, ओह वाह, this is Shashi is there as well. I think I had already gone by them anyway. मैं फाइनली पापा से पतला हो गया। राइट दीदी, आप कुछ जर्नी बताएं आप ताऊ जी की। चिकी बोल रही थी। हाँ बिल्कुल, हम क्या जीवन भर की जर्नीज हैं, बट सबसे पापा की बड़ी खासियत, जो अब हम उस एज में आ रहे हैं जिस एज में पापा का जाने का समय आ गया था, तो व्हाट स्टैंड्स आउट टू मी, जो ताई जी ने और अर्चना चाची ने दोनों ने बोला, द रिस्पेक्ट फॉर विमेन एंड फॉर विमेन्स इक्विटी। जब हम आए थे तो हमसे बड़े शुभेन दादा, पिंटू दादा, नीटू दादा, टीटू दादा, और उनके साथ हम साथ खड़े होके खेलते थे। हर चीज, जो वो स्विमिंग करते थे हम भी करते थे, जो वो क्रिकेट में जाए तो हमें भी, तुमको खेलना है तुम भी खेलो, तुमको जहाँ पढ़ना है जो करना है तुम करो, दादा लोगों के साथ खड़ी होके। कभी ये महसूस नहीं हुआ कि तुम लड़की हो वो लड़के हैं, वो ये कर सकते तुम नहीं कर सकती। हम भी आंगन में कबड्डी खेलते थे उनके साथ, हम भी छुपा छुपी खेलते थे, हम भी बारात में जाते थे, जो वो करते थे वो सब साथ खड़े होके करते थे। एंड दैट वाज डिफरेंट फॉर इट्स टाइम। एक बार बाबा ने कहा, हमें याद नहीं किस चाचा की शादी थी, बाबा ने कहा लड़कियां बारात में नहीं जाती, पापा ने कहा नहीं लेकिन चिकी तो जाती है। सो दैट वाज अ पाथ इन इटसेल्फ। जब हम दिल्ली आए, सेंट फ्रांसिस डी सेल्स, इट वाज अ कैथोलिक स्कूल, हम सुबह शाम दिन में 3 बार प्रेयर्स बोलते थे वहां पे, एंड पापा वाज ऑल फॉर इट, ही लर्न द प्रेयर्स विथ मी। जब हमने कहा कि हमें मेडिकल करना है, देयर वाज नो डाउट इन हिज माइंड कि तुम्हें जो करना है तुम करो। देयर वाज वन प्रपोजल कि तुम डेंटल कर लो। पहले हमारा डेंटल कॉलेज में एडमिशन हुआ था और ये कहा गया था कि 4 लड़की है, 4 साल में डेंटल कर लोगी, शादी हो जाएगी, अपनी प्रैक्टिस कर लेना। हम पापा ने कहा तुम क्या करना चाहती हो? हमने कहा हम मेडिकल में जाना चाहते हैं। जो तुम करना चाहती हो वो तुम करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। फाइनल ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल में हमने कहा हमें यूएस जाना है रेसिडेंसी करने। पापा ने कहा हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तुम करो। एंड नॉट ओनली विथ मी, हमारी जो फ्रेंड्स थी वो भी आके हमारे पापा से ज्यादा खुल के बात कर पाती थी अपने पापाओं के बजाय। We used to go on long walks where we would talk about John F. Kennedy, Jacqueline Kennedy Onassis, the principles of Clinton's, the Bushes. He was reading that literature 25-30 years ago. And not only would he read, he would highlight. और आप बता सकते हैं कौन सी किताब पापा ने पढ़ी है, बिकॉज उसमें उनके नोट्स होते थे। वो जॉन एफ कैनेडी की बायोग्राफी विथ नोट्स पढ़ा करते थे आफ्टर वर्किंग ऑल डे। वो कविताएं भी लिखते थे, उनकी कविताओं की एक किताब है छोटी सी, उसमें वो अपनी थॉट्स लिखा करते थे। एंड ही वाज सो सेंसिटिव, वो सबके सामने काफी खुश मिजाज, गुस्सा मिजाज, जो उनके मन में होता था साफ स्पष्ट शब्दों में कहते थे, लेकिन वो कविताओं में भी अपना अंदर का जो भी उनको तकलीफ परेशानी होती थी वो उन लाइनों में लिख दिया करते थे। एंड ही यूज्ड टू गेट सो मच जॉय फ्रॉम अदर पीपल्स सक्सेस। कौन कितना अच्छा कर रहा है जिंदगी में, उससे उनको इतनी खुशी मिलती थी। नॉट नेवर हिमसेल्फ एट द फ्रंट बट बिहाइंड एवरीबडी। जिसका जो पैशन है, जिसको जो पसंद है, उसको मैं कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं कैसे नर्चर कर सकता हूँ। अम्मा को क्या पसंद है, शोभित को क्या पसंद है, टीटू को क्या पसंद है, नीटू को क्या करना है, पिंटू दादा को क्या करना है। ही वॉज बिहाइंड एवरीबडी एंड ही वुड बी more happy for them than he would be happy for himself. जो जितना आगे बढ़ता था उतनी उनको खुशी होती थी। हमारी जो मोस्ट कंपेटिटिव फ्रेंड थी कॉलेज में, उसकी मम्मी को फोन करके बोलते थे कि देखो तुम्हारी लड़की ने कितना अच्छा किया, आई एम सो प्राउड ऑफ हर, शी इज सो ब्राइट। He was the generosity and the progressiveness of his spirit I still admire to this day, because I know there were so many challenges in life and around that time.
बट डिस्पाइट दोस चैलेंजेस वो सबके बारे में सोचना कि सबके लिए क्या नया कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, वो सोच बहुत बड़ी थी उस समय के लिए. To say that my daughter is just going to go to the US at the age of 23 and do what she wants to do and I am behind her, ऐसे कम लोग हमने देखे थे उस समय में. हमारे क्लास में दिल्ली में मौलाना आजाद में कोई और लड़की ऐसी नहीं थी जिसके पापा ने कहा तुम जाओ, तुम अपने सपने पूरे करो, रेस्ट विल फॉलो. तो हम उनकी उस विजन और उस थॉट को इंस्पिरेशन लेके चलना चाहते हैं कि हम लोग भी इतना सोच सकें अपने से आगे दूसरों के बारे में, और अपने से बड़ा दुनिया बहुत बड़ी है, उसमें बहुत नए नए विचार हैं, उनको कैसे हम लोग इंस्पायर होकर अडॉप्ट कर ले. हमने बस पापा की यादों में यही सबसे सीखा है कि खुल के सोचो और साफ शब्दों में सोचो, जो मन में है वो सामने कहो ताकि सब सुन सके, समझ सके उसको. तुम तो चिकी बेटी थी उनकी, उन तो हमने कहा हमें LLB करना है, उनने कहा मंजू भाभी मैं भैया जी से कहता हूँ आप शाम को कॉलेज क्लास अटेंड करेंगे. मंजू भाभी आप ये कर लीजिए, आपकी इच्छा है. मैं भैया जी कहता हूँ कार चलाने वाली. हाँ हाँ. अम्मा को ड्राइविंग लेसन सिखवाए थे पापा ने त्रिवेंद्रम में 1989 में. उनकी बहुत इच्छा थी हमारे लिए भी, और सिखाने वाले ये श्रीमान जी पप्पू भैया थे. मैं सिखाई नहीं, लेकिन मैं आज ही कह रही थी, आज ही बात कर रहे थे कि पप्पू भैया ने हमें सिखाई नहीं. कार हम कहते भोपाल में इच्छा देवी तो बहुत मुश्किल से थी हैंडल कहाँ लगवा था मैं आपसे. नहीं भाभी को सिखाई थी. पापा की बस एक अच्छी मेमोरी एक हम और शेयर करना चाहते हैं. जब उनकी पोस्टिंग त्रिवेंद्रम हुई थी तो वो सनसेट पे, वहां पे बीच था, उसमें वॉक करते थे. तो वहां पे एक बार उनको जैकलिन केनेडी ओनासिस दिख गई थी. तो वो जॉन एफ केनेडी के इतने बड़े फैन थे. पापा कहते हैं कि दिस इज माय लाइफ्स बिगेस्ट मोमेंट जब हमने जैकलिन केनेडी को देखा था. उन्होंने काफी सेलिब्रिटीज को देखा था अशोका में, फिल्म स्टार्स, प्राइम मिनिस्टर्स. जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी तब वो वहीं थे होटल में, तब स्टेट्स हेड ऑफ द स्टेट्स के साथ. बट वो उनकी सबसे यादगार एक मेमोरी थी. हमें सबसे पहले 5 स्टार होटल में खिलाने वाले प्रकाश भैया थे. अशोका होटल में खिलाने ले गए थे थाली. उनका तो वर्क फ्रॉम होम था. यार हम तो वो जहाँ पे भी रहे हैं, कोई भी जगह रहे हैं, हर जगह उनके साथ रहे हैं. मैं सिर्फ त्रिवेंद्रम बहुत साथ रहा है उनका हमारा. राइट. ओके, ट्रिविया टाइम. मे बी मैं थर्ड जनरेशन को आगे लाऊंगा और पूछूंगा कि ये बच्चे जो यहाँ पे बैठे हैं इनके नाम बताने की कोशिश करें. Yeah. Come on, Ashwin, Naina, give it a shot. Okay. बोलेगा वो. अच्छा. फोटोग्राफर. The person at the front, the girl Bua, and then there's You know who's on the right to Bua? नहीं ये चिकी है. This is Tiku Tauji. and then ये है चिकी. Yeah. हिंदी है. That's ये रही. Bua. Tiku Tauji's daughter. Bob. ये चिंकू है. चिंकू है. चिंकू. हाँ, ये दोनों यही कह रहे हैं कि अश्विन आपके जैसा लगता है बिल्कुल. गुड लुक्स है हमारे. तो ये शशि चाचा के पास कौन है? ये स्टिल अ मिस्ट्री. मुझे लगता है वैभव भैया होंगे शायद. अरे हैं. हाँ वैभव भी लग सकता है. निधि और वैभव. हाँ, निधि निधि नीचे भी. बैठी है और शशि भैया वैभव को पकड़े हैं, और बड़े ताऊ की गोदी प्रकाश में भैया चिंकू को पकड़े हैं. और बड़े ताऊ जी की गोदी में कौन है ताई जी? आशीष क्या? आशी है क्या? आशी. आशीष. पता नहीं, मेरा गैस आशी है. हाँ, चाची को बुलाओ, चाची को बुलाओ दादा. बुलाइए. I know it's Ashi, definitely. Okay. Sorry, स्पीकर तुमने ऑफ कर दिया था यार. इसमें चिंकू की फोटो टीटू से मिल रही है.
Because you were so good looking. बिल्कुल, वे हमने हम ही लोग हैं बस। बाकी टाइम पहुंचते नो हैंडसमनेस क्वेश्चन डिप्ड क्वाइट ड्रामेटिकली, एंड क्रिकेटिंग टैलेंट भी काफी डिप हुआ हमारा। गौरव कितना हारा है आंगन में क्रिकेट खेलते। बिफोर या वही मेरे को लगा ये तोपे यहाँ मुड़ रही हैं धीरे-धीरे। कितना रोया है, कितना हारा और कितना रोया है। पर गौरव डांस बड़ा बढ़िया करता था। गौरव का तो हम डांस नहीं भूल सकते। सब छोटा सा था, बढ़िया ऐसे स्टेप्स करता था, इसको सारे आते। हाँ, गौरव अच्छा डांस करता था। अरे बारात में अभी भी ले चलिए। बारात डांसर। शोभित दादा, आपकी कुछ मेमोरीज, आपने क्या कुछ भी जो भी शेयर करना चाहें प्लीज। दीदी ने बहुत बहुत अच्छा कैप्चर किया। I was very young when Papa passed away. I was a dumb teenage boy, honestly. नहीं, Who didn't kind of appreciate a lot of the subtleties. Papa was never overtly pushy or overtly exertive on anything. It was always very subtle, very laid back. I think हमारे जिंदगी में मतलब I was 18 when Papa passed. मेरे ख्याल से हमें पापा ने शायद एक बार कभी मारा, एक बार, and that was in Trivandrum. And I remember the night he hit me. He didn't know that I was awake, but he sat by my bedside the whole night. The whole night. He was. I never. हमारा मैथ्स में 100 सबको याद है, but not many people know that I got 40 out of 100 in maths 8 months before. पापा ने हमें बैठ के पढ़ाया, रात भर बैठ के पढ़ाया, without losing his patience, without getting mad at me or anything. And this is when दोनों हमारी और दीदी के board years में अम्मा पापा made the decision to live in different cities so we could get better education. And I mean, after Papa's passing, बहुत साल लगे मेरे को ये सब चीज समझने, बट कुछ चीजें धीरे धीरे लाइक साफ बोलना, सब कुछ साफ बोलना, जो है वो साफ साफ बोलना. No politics in you know, or no lack of clarity in within the family. Love for the family, परिवार के लिए हमेशा. And now as a father, मतलब I see a lot of things, I reflect about it, and I learn the encouragement. I don't remember ever being told कि ये तुम नहीं कर सकते, या ये तुम मत करो, या ये इसका कोई वो नहीं है, कभी वो नहीं. बहुत सारे, I mean, there was a time when हम लोग दिल्ली में थे, पापा ट्रिवांड्रम में थे, या हम लोग दिल्ली में थे, पापा कलकत्ता में थे. There are a lot of letters that he wrote, and they were so expressive. I was too young to appreciate what he was trying to mold me into, and it's taken time. It's taken a while, and Didi and I have spoken about it. Yeah, I spent a number of years not appreciating what I had because I couldn't understand it. There was a depth to his thinking. बहुत कुछ. I have very happy memories of my childhood leading up to just that last year. Like, I mean, like Didi said, yes, there was pressure, there was tension, but we never felt it. इतना ज़्यादा नहीं था. And then of course, पापा ने अपना बहुत सारी चीजें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मोल्ड करी. पान पराग छोड़ा, अम्मा ने उनको एनकरेज किया, उन्होंने छोड़ा, सुपारी खानी शुरू की. He started walking when his diabetes was out of control. He would walk a lot. He would exercise. He would stay healthy. He had बहुत टाइम ऐसा था कि पापा बहुत जल्दी सुबह उठ जाते थे, 3, 4, 5 बजे. हमेशा हमें पढ़ाई के लिए सुबह हमें हमेशा नींद आती थी. I could never study in the morning, but
पापा हमें उठा के पढ़ाने के लिए जगाते थे, and then he would stay up with me. He would sit and read to whatever, and like Didi mentioned, I have diaries of his notes which are underlined, words highlighted, expressions learned, and then yeah, like he was. I also remember a few, like जैसे किसी की शादी थी या कुछ था, Pranav used to always enjoy dressing well. And I remember it was somebody's wedding and he did not have the right pair of shoes. And Pankaj Fupaji was kind of telling him, no, you're fine with those pair of shoes, you're okay. And पापा ने बोला पंकज फूफाजी को कि नहीं, अगर तुम उसको सही कपड़े पहनाना चाहते हो, तो अगर ये लड़का कह रहा है इसको सही ड्रेस करना, तो it is important, you should get him that. And that stuck with me, like how you dress, what you wear, how you present yourself, those things I kind of remember. But yeah, I wish I had more time to learn, but I was in a way equally fortunate. Yes, हमारा सब परिवार, but after that Didi got married, and for the lack of a better word, Jiju's been like a father figure for me. He's I mean, बहुत ज़्यादा उम्र में फर्क नहीं है, but he's molded along with Didi. He's molded my life, and I think Jiju and Papa would have got along wonderfully. They are very, very similar in their basic character and nature and goodness. So like Chacha keeps saying, right, in one form or the other, Papa is there. He's there. और ये आगे हमारी विनर सुदीक्षा क्या अरे वाह, आई? What position do you play and what game was this? हाँ, कौन सा मैच था दीक्षा? So Shobhit, before Sudiksha starts, I think most of your memories will be reflection. What you used to do, you are possibly realizing now. Yeah. So yes, it's more of reflection. So very well articulated, and I'm sure a father figure definitely is missed. Good. So you start with Sudiksha now. Yeah, but I would just say that this was also Amma and Papa's blessing that we are surrounded with a loving family. हम लोग, yeah, both Didi and I were young, but we've had everyone here. सब हमेशा साथ खड़े रहे, हमेशा कभी कमी नहीं महसूस हुई. बट एक बात जो तुमने कही शोभित थी, हम भी इस बात को मानते हैं. पापा खुल के बात करते थे. वी यूज्ड टू सब कुछ हम लोग के साथ शेयर करते थे, अपने ऑफिस के टेंशन्स, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन, अपनी सोच, अपनी परेशानी. तो हम लोग को भी वही आदत हो गई कि हम सबके साथ खुल के शेयर कर सकते हैं. हमें क्या तकलीफ है, हमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा, क्या परेशानी है, उसका कैसे हल निकालना है, वो खुल के बात करते थे. वो खुलापन उनका हम अब भी याद करके एडमायर करते हैं, क्योंकि it is a rare quality that we also still don't see in the world as much. So yes. हाँ. प्लेयर क्या खेल के आई? What position do you play? प्रणाम बाबा, प्रणाम बुआ, प्रणाम चाचा. खुश रहो बेटा, खुश रहो. वेलकम. तो मैंने I play in defender's position. Yeah. Are you a strong defender? Do you lean in a lot? मतलब थोड़ा धक्का देते कि नहीं? बिल्कुल. Definitely I do it a lot. देखो सीखो. Sudiksha Didi is also. Naina also plays soccer, तो उसको भी पसंद है थोड़ा शोल्डर देना. फुटबॉल में वो जरूरी है, लेग्स तो बाद में आते हैं. हाँ. तो तुमने ज्यादा प्रैक्टिस किसके साथ करी? निहारिका के साथ कि पापा के साथ? पापा. हाँ. पापा